index of diamond is? Refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इसका मेरे को आंसर पता है और मैंने बताया भी था। I think so. मैंने Maybe. मैंने इसका आंसर बताया था, मेरे को याद आ रहा है। Yes, yes. Again, repeat. We mean that the ratio of speed of light in air or vacuum Hmm. to the speed of light in diamond is equal to 2.42. But how we will write the answer? I will let you know. You are ऐसे नहीं correct. लिखेंगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे. It is ratio. But we will give answer in theoretical form. How we will give? Write down. Both of you. Ishan, be careful about the handwriting. अभी तो मैम हाथ नहीं चल रहा, इतना वो है। लिखो. As diamond has refractive index as diamond has diffractive index of 2.42, it means the speed of light in it is reduced by a factor of 2.42 when compared to the speed of light in air. Prisha, Ishan, both of you are writing. Ma'am, reduced by the factor of? Reduced by a factor of 2.42 Factor of 2.42, no? 2.42 when compared when और compared. मैम हम्म. मैम इसके मेरे पे रिफ्लेक्शन के भी नोट्स नहीं है। हाँ मैं भिजवाऊंगी. रिफ्लेक्शन पार्ट्स के वो भी, भि- उसके भी नोट्स नहीं है। हाँ मैं वो भी भिजवाऊंगी. ये सब कलेक्ट करके रखना प्रॉपर वे में नोट्स. when compared to the speed of light in air. Okay. Prisha and Ishan, have you written? Yes, ma'am. Okay, one more thing I want to ask students. On last run, as we written like center of curvature, basic terms related to spherical lenses. Yes, ma'am. Center of curvature, principal axis, optical center, aperture, convex lens, concave lens. Yes, ma'am. We written these all things. Hmm. फोकल लेंथ वगैरह सब हो गया था. हाँ, तो फोकल लेंथ तक हुआ है. फोकल लेंथ तक हुआ है. हाँ ये लिखा तो है. ठीक है ये सब हमने कर लिया था. Hmm. ईशान, नो नीड टू राइट, स्टार्ट टू रीड फ्रॉम हेयर. The paper begins to burn, producing smoke. It may even catch fire after a while. Why does this happen? The light from the sun constitutes parallel rays of light. These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper. That bright spot you got on the paper is a real image of sun. The concentration of sunlight at a point generating heat is comparable. Prisha, you got this point? Prisha and Ishan, Yes, ma'am. what happened if it is converging? It means
sunlight, rays of sunlight will be focused on a point. If here it is paper, it starts burning. Is that clear, Prisha? In case of mirror, which acts as converging? Ma'am, a concave mirror? Concave mirror. That's why here convex lens and concave mirror can burn the paper. Hmm. Next paragraph, Prisha. Now, मैं पढ़ूं? this one. Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? This is illustrated for a convex lens in figure 10.12a and for a convex lens in figure 10.12b. This one. We already done here. No need to write. This is for Concave lens. convex lens and this is for Concave mirror. concave lens. Beta, we are doing lens. अच्छा, दोनों इश लेंस हैं. दोनों लेंस है. Because if we are having both surfaces and here light is refracted, then it is a lens. One thing. Second thing is that here rays are converged here. Okay, that's why Ishan, convex lens also known as Diverging lens. converging lens and Converging. concave lens Diverging. diverging. Why? Because here parallel rays are coming and it diverge. Okay. Ma'am, the convex lens is converging. Convex lens is converging, concave mirror is converging. ये साथ में याद रखना पड़ेगा. अच्छा, दो उल्टा हो जाता है ना उल्टा. लेंस में. ठीक है. अभी प्रिशा ने पढ़ा था ना. ईशान, यू रीड इट. ऑब्जर्व. ये लिखना नहीं है अभी कुछ. हाँ. Observe figure 10.12a carefully. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays, after reflection आफ्टर from refraction from रिफ्रैक्शन. लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा. lenses are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus of lens. Let us see now the action of a कॉनकेव लेंस समझ में आ गया. कॉन्वेक्स लेंस converging, तो क्या होगा? These rays after diffraction from the lens converge to a point on the principal axis. और इस point को बोला जाता है principal focus. Students, on last turn we written principal focus or not? Please confirm. Definition of principal focus. I think so. principal focus. Hmm? Principal focus means such as I think so कि मैंने यहाँ तक लिखवाया था. नहीं मैम, हमने फोकस ऑफ लेंस लिखा है. वो लिखा है ना, वही प्रिंसिपल फोकस है, वहीं तो जाकर मिल रही है. तो फोकस ऑफ लेंस को ये एक ब्रैकेट में. सुनो मेरी बात, मुझे जरा हेडिंग बताओ. प्रिंसिपल फोकस के उसमें क्या लिखा है जो आप बोल रहे हो ना, फोकस ऑफ लेंस. हाँ, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल हाँ एक्सिस ठीक है. रिफ्लेक्शन from a convex lens converge to the point on principal axis denoted by F and known as principal focus. प्रिंसिपल फोकस हो गया बेटे, ये है ना. प्रिंसिपल फोकस हमने लिख लिया है. ठीक है. ईशान, आपके पास भी लिखा हुआ है नहीं? वैसे मैं नोट्स आपको प्रॉपर वे में भिजवाऊंगी ये भी. हाँ भाई, 10.12 में क्या हो रहा है? प्रिशा, रीड इट. हाँ. Observe figure 10.12b carefully. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. These rays, after refraction from the lens, are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens. यहाँ पर देखो, diverge, and it is appearing that it is coming from here. Okay. Now
we have done principal focus for concave and convex lens. Focal length we have written or not? Focal length. No. ठीक है, मैम अभी लिखा लिखवाते है, लिखा है। फोकल लेंथ भी लिखा है. लिखा हाँ Distance OF1 OF2 is called as focal length. हाँ लिखा होगा ईशान, लास्ट में लिखवाया था लाइन ये. कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर वे में नोट्स भिजवा दूंगी. मिस हुआ होगा कुछ ईशान, अभी समझ लो. यस ईशान, रीड इट. If you pass a parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Letter F is used to represent principal focus. However, a lens has two principal foci. They are represented by f1 and f2. The distance of the principal focus from the optical section of a lens is called its focal length. The letter F is used to represent the focal length. How can you find the focal length of a convex lens? We call that activity 10.11. In this activity, it is the distance between position of the lens and the position of the image of the sun gives the approximate focal length of the lens. Students, what happened here? They are uh, telling about focal length. So what is focal length? Focal length is this distance. Actually lenses are having two surfaces, so this distance OF2 and OF1, here OF1, okay, और इधर की तरफ होगा OF2. These are known as focal length, means distance of optical center and focus is known as focal length. Clear? And for convex lens, how can we calculate focal length? By this activity. If we focus sun rays on a paper, paper starts burning, so it gives approximate length of focal length. Okay, यहाँ तक रीडिंग हो गया ना पूरा ईशान एंड प्रिशा? Now write down the heading image formation by lenses. Image formation by lenses. Prisha and Ishan, are you writing? कहाँ से लिखना है? अभी आप हेडिंग डालो. देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक हमारा रीडिंग पूरा हो गया ना. हाँ. अब हम टॉपिक करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. आप हेडिंग लिखो ये वाला, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, in your notebook. Note it down. After writing down that heading, एक सब हेडिंग बनेगा इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, वरना उसी में कंटिन्यू कर दो यूजिंग रे डायग्राम्स. चाहो तो सब हेडिंग बना लो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू देयर ओनली यूजिंग रे डायग्राम्स. प्रिशा, आर यू राइटिंग? यस मैम. ओके, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स. उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग 1. अच्छे से लिखना दोनों. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में कुछ नहीं लिखना. उसके यूजिंग बाद सब हेडिंग डालनी है यूजिंग रे डायग्राम. यूजिंग रे डायग्राम.
सब हेडिंग ना? सब हेडिंग भी डाल सकते हो, उसी में कंटिन्यू भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, नो इश्यूज। एक हेडिंग हमें देनी है, दैट्स इट। अब कहाँ से लिखना है? अब बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग, ये प्रॉपर नोट्स हैं। वी विल प्रिपेयर दिस डायग्राम, ओके। वी विल राइट, देखो अभी क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, आफ्टर दैट वी विल राइट। हेयर दिस इज, विच लेंस इज दिस ईशान? Convex. Convex lens. So parallel ray is coming and it converges to a point. And in case of concave lens, Prisha, what is happening? Ma'am, it diverges. It diverges, it appears it is coming from this focal length. So how you will write? And one more thing, students, you will prepare this lens and equally OF1 and OF2 you will mark. It should be equal. OF1, OF2 you will mark. It should be equal. Okay. So image formation in lenses using diagram. After that you will write this line, you have to write a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus. On the other side of lens, in concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. इतना आपको लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, as shown in figure 10.13a। इन केस ऑफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है। राइट इट डाउन। मैम तो पहले लिखना है कि डायग्राम बनाना है? It depends on you, no issues. Firstly you can write, after that diagram, otherwise firstly you can prepare the diagram, after that you can write। ईशान अच्छे से बनाना बेटा डायग्राम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से लिखना सब। After preparing, let me know, we will start next topic।
Done, Ishan and Prisha? मैम लिख के हो गया, मैं ड्रॉ कर रही हूँ. Okay. What about Ishan? Same. Okay. Firstly, we will write all the things. After that, I will check last of the class. मैम आपने बोला कि F1 और F2 इक्वल होना चाहिए. O से. What do you मतलब कैसे कि मैं अगर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचती हूँ हाँ. तो मैं मिरर ऐसी जगह बनाऊं 3 सेंटीमीटर बीच में. नहीं, ये लाइन लंबी खींचो ना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा लंबा सही खींचो. हाँ फिर ये बीच में लेंस, ये ठीक है. पॉइंट O, और यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 3.5, ये ठीक है. यहाँ पर 3.5 दे दो, यहाँ पर भी 3.5. ठीक है, दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होने दोनों चाहिए. इक्वल. सेम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव. वेट, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड. है. हाँ मम्मी. क्लास चल रही जरा. Diagram should be very neat and clean, as we are showing ray diagrams. So the most important thing is that there should be arrows, because direction of rays are shown by arrows. And here we will make dotted line, means their ray is not going, it is appearing that it is going towards F1. Be very very careful about the ray diagrams. Ma'am. हम्म. ठीक है. अच्छा है, बट लेंसेज थोड़े और अच्छे बनाना. एक लेंस तो मैम मैंने एप्पल को देख के बनाया है सच्ची में, हम्म. क्योंकि वो ये कॉनकेव वाला एप्पल ही लगता है जब पूरा खा जाते हैं ना. हाँ हाँ हाँ, सही है सही है. ओके. प्रिशा, यू डन? और मैम कॉन्वेक्स को आम की नहीं मैम. कॉन्वेक्स आंख, क्योंकि हमारी आंख मैम में भी. क्या आंख हुआ? नहीं, आम.
अच्छा, आम को देख के बनाया है। आम की जो गुठली होती है ऐसी तो होती है। ओके ओके, ये अच्छा है ईशान भाई। यस प्रिशा, यू कंटिन्यू। प्रिशा डन? कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट? मैम मेरा हुआ नहीं है, मैं बाद में बना लूंगी। अच्छा ठीक है, बुक का ही है, बना लेना। अब हमारा है ये वाला सेकंड पॉइंट में। फर्स्टली लिसन टू मी केयरफुली, आफ्टर दैट आई विल गिव टाइम। हियर व्हाट इज हैपनिंग? ray is coming from principal focus, and after refraction from the lens it will become parallel to the principal axis. Okay, it is coming like that. It is appearing that it is going towards the principal focus, and after refraction it will become parallel to the principal axis. Are you okay with it, students? मैम समझ नहीं आया। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। ईशान, फर्स्ट पॉइंट आप मुझे समझाओ, सेकंड मैं आपको समझाती हूँ। ये ए वाला। ए वाला जो अभी लिखा ना हमने, उसमें क्या हुआ था? मैम ये जो ए में है वो लाइट जो आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। पैरेलल एफ आ रही एफ है। एफ से आ रही है, एफ से, और वो जब उससे डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रही है उससे वो फिर एक पैरेलल लाइन जा रही है F2 वाली लाइन से। तुम फर्स्ट बोल रहे हो या सेकंड बोल रहे हो? अच्छा आप ये वाला फर्स्ट कह रहे हो, मेरे हाँ को लगा फर्स्ट। फेयर वाला फर्स्ट। हाँ, अच्छा ये यहाँ पैरेलल आ रही है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और फिर वो लेंस को टच करते ही डाइवर्ज होके F2 पे जाती है। कन्वर्ज होके, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रही है, कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज होकर लग रहा है कि F1 से जा रही है। जस्ट इसका अपोजिट है इन सेकंड। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, then after refraction it is appearing that it is going parallel to the principal axis. Okay, same here, it is coming like this and it become parallel to the principal axis. Okay, Prisha and Ishan, यस मैम। what about Prisha? यस मैम। Now what you will do, write down a ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. A ray of light appearing to meet at the principal focus of convex lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. Otherwise, what I am doing, as it is not completed, I am only telling here, after the class you can write. Okay? Okay, Ishan and Prisha? क्या कहा आपने? क्लास के बाद लिख लेना, ये मैंने टिक किया है अपनी बुक में, टिक करो। ये लिखना है प्रॉपर वे में इन योर नोट्स। ओके मैम। ठीक है ईशान? मैम तो अभी लिखना है कि नहीं लिखना है? अभी रुक जाओ, अभी केवल टिक कर लो, क्योंकि बुक तो का अभी ही। डायग्राम भी मैम नहीं बुक ही बनाना नहीं है? है। मैम बुक नहीं है, बुक नहीं है? बैग में है। को लाता हूँ एक लेकर। मिनट। प्रिशा मैं क्या बोल रही थी अभी, क्योंकि पूरा हो नहीं पा रहा, जैसे पहले का भी डायग्राम रह गया, मैं बता देती हूँ, फिर एक साथ आप लिखते रहना अच्छा बाद में ना क्लास बाद के? में। हाँ, हाँ तो अभी बस आप समझाओगे? समझा रही हूँ। देखो इस वाले में क्या हो रहा है प्रिशा, 10.15। मैम मैं 2 मिनट में आई, मैं अभी बुक लेके आई। अच्छा बुक ले।
ले आया मैम और टिक कर लिया। कर लिया। अब इसमें थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है ईशान? अगर लाइन मैम ऑप्टिक सीधे में जा रही है। क्यों जा रही है? अगर ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक हो रही है कोई रे, तो विदाउट डेविएशन it will be refracted without deviation. Okay, अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है then without deviation it will be refracted. A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. Okay, प्रिशा एंड ईशान? यस हाँ मैम। मैम, मैंने भी कर दिया मार्क। हाँ, इसमें तीन चीजें बताइए बस। पैरेलल जा रही है तो उसके फोकस की तरफ, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो गया, ऑप्टिकल पहले सेंटर से जा रही है तो विदाउट एनी डेविएशन। आफ्टर द क्लास यू कैन राइट। कैन आई स्टार्ट न्यू टॉपिक नाउ? अभी मुझे इतना बताओ, पहले अभी लिखते हो ये, या मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दूं? मुझे कुछ भी चलेगा मैम। अच्छा ईशान, आपको सेम कुछ भी। कुछ भी? तो फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। उसके लिए जो ऊपर बताया मैंने, उसके लिए स्पेस छोड़कर डालना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। And here we will do these 6 condition. Here these 6 conditions we will do. Firstly listen to me, after that we will start. Firstly, object is at infinity, फिर beyond 2f1, at 2f1, between f1 and 2f1, at f1, between f1 and optical center. What you do students, open this table in your textbook. अपनी टेक्स्ट बुक में टेबल खोलकर रखो 178 पेज पर। खोली 178 पेज पर ये टेबल ओपन कीजिए। प्रिशा एंड ईशान? मैम नई बुक में 152 है। 152 है? ओके ओके। ईशान यू चेक इन योर बुक। मिल गया। मिल गया? ठीक है। अब उसी पेज पे था मैं। ठीक है ठीक है, उस टेबल पर अभी केवल मैं बता रही हूँ, लिखना अभी कुछ भी नहीं है, केवल सुनना है आपको। अभी क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस का केस है, फर्स्ट केस क्या है प्रिशा? टेबल से देखो। मैम एट इंफिनिटी। इनफिनिटी पर अब अगर ऑब्जेक्ट है तो रेस क्या होगा? पैरेलल आएंगी। और कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्ज किधर की तरफ हो जाएंगी? मैम फोकस की तरफ। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल, वेरी गुड। और देखो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, as these are the diagrams for light, we have to be very very careful about the arrows. After that Ishan, acha ek second, Prisha, firstly you continue. So what is the relative size of image here? मैम हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, बिल्कुल छोटा सा बना है, and it can be told as point sized. And nature of the image क्या है? Real अगर है। रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, why it is real? Because here rays are actually meeting. Rays are actually meeting. That's why it is real, and real images are इन्वर्टेड। inverted. Are मैम you मतलब अगर मिरर के पीछे बनता है तो वर्चुअल और इरेक्ट है ना? मिरर के पीछे? हाँ हाँ, लेकिन बेटे here we are discussing about lenses, वो ठीक है हाँ, आपका। मतलब अगर लेंसेज में भी
उसके पीछे जा रहा है. हाँ नहीं इन अगर द सेंस. ठीक है उसी साइड बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट है तो हम्म. ठीक है मैं बताती हूँ अभी पहुंचती हूँ उधर तक ईशान नाउ ऑब्जर्व दिस वन बी वेयर ऑब्जेक्ट इज पुट हेयर ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है ईशान ए बी नहीं नहीं दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ रखा हुआ है 2F पे 2F 2F1 पर नहीं है इट इज between infinity and 2f1 or we can say beyond 2f1 we can say beyond 2f1 okay समझ में आया ना you can see the table beyond 2f1 okay अभी लिखना नहीं है कुछ केवल समझा रही हूँ मतलब बिटवीन 2F2 एंड वो है इसमें दिखेगा इधर हाँ इमेज दिखेगा between f2 and 2f2 between f2 and 2f2 2f2 क्या है just double of f2 मतलब अगर हम ये 3 सेंटीमीटर लिया वी विल टेक दैट 6 सेंटीमीटर एक बात दूसरी बात लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो होगा ना स्फेरिकल लेंस का ये वाला पार्ट एक कर्वेचर से हमने कट किया होगा तो ये जब पूरा करेंगे तो इसका रेडियस 2f2 पर आएगा ओके या इस वाले को अगर मैं पूरा करूंगी तो ये इधर 2f1 पर आएगा आर यू ओके विद इट स्टूडेंट्स ईशान एंड प्रिशा यस मैम Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या है बियॉन्ड 2f1 है तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज फॉर्मेशन है बिटवीन f2 एंड 2f2 और ईशान ये इन्वर्टेड कहलाता है इरेक्ट कहलाता है इन्वर्ट वो इरेक्ट इरेक्ट नहीं बेटा इन्वर्टेड उल्टा इन्वर्टेड बना ना ऑब्जेक्ट ऐसे है ए बी और इमेज बन रहा है ऐसे सो दिस इज इन्वर्टेड और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ओके नेक्स्ट प्रिशा वेयर ऑब्जेक्ट इज पुट Ma'am, at 2F. 2f1 पर हमने रखा है देन इमेज फॉर्मेशन ऑन 2F2. रे डायग्राम बनाने का तरीका वही है वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड Passes through the. फोकल एंड अनदर वन विदाउट डेविएशन फ्रॉम वो ऑप्टिकल रिफ्लेक्ट होगा. सेंटर रिफ्रैक्ट होगा. रिफ्रैक्ट होगा. विच वन ये जो सेम जा रहा है थ्रू द. हाँ विदाउट रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन हाँ. है ना ये बिल्कुल ऐसे ही निकल गया तो यहाँ पर बनकर आया है इमेज और दिस इज ए डैश बी डैश ओके क्लियर हो गया ये वाला डायग्राम भी एंड व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट इट इज कैसा है इस इनके साइजेस में क्या कंपेयर अगर हम कंपैरिजन करते हैं व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट इज इक्वल अगर 2f1 पर रखा है तो ये इसके इक्वल ही बनेगा और इमेज कैसा है प्रिशा वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड मैम रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड वेरी गुड ईशान नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम विद मी वेयर ऑब्जेक्ट इज पुट बियॉन्ड 2F1 between 2f1 and f1 and where image formation takes place वेयर image formation takes place 2f2 के बाद बन रहा है ना 2f2 के पीछे बन रहा है ना ईशान यस मैम so it is told as beyond 2f2 what about the size of the image मैम बिगर enlarged
We will say enlarged enlarged and inverted. and real and inverted. Prisha, are you okay with the D diagram? Formation वैसे ही parallel and will Yes, ma'am. converge towards F2 and Hmm. at O without deviation. Now we will observe this diagram E. हाँ मैम. E में क्या हो रहा है? मैम उन्होंने एट F1 रखा है ना. हाँ. Then हाँ और फिर वो पैरेलल गया और पे, डाइवर्ज नहीं, आई मीन कन्वर्ज हुआ हाँ पहले पैरेलल टू टुवर्ड्स F2. F2 हाँ और फिर वो दूसरा विदाउट डेविएशन वापस आया. O से गया, हाँ विदाउट हम्म. डेविएशन वापस नहीं आएगा, ये लेंस है ना, मिरर में वापस आते हैं. हाँ मतलब वापस नहीं आया, हाँ विदाउट डेविएशन गया. डेविएशन यहाँ पर ये चला गया. तो हम्म. इमेज फॉर्मेशन देखो कहीं आगे जाकर हो रहा होगा, तो कहीं आगे जाकर होने का मतलब है कहाँ पर हो रहा होगा? एट इंफिनिटी. एट इंफिनिटी. साइज कैसा होगा? पता नहीं. हाईली एनलार्ज्ड. यहाँ कहाँ जाकर मिलेगा? तो इधर से बिल्कुल एनलार्ज हो जाएगा ना. हाँ. हाईली एनलार्ज होगा एंड इमेज दूसरी साइड बन रही है, इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड. ओके हम्म. हम्म. ओके. ईशान, नाउ एक्सप्लेन एफ. Yes, ma'am. एफ वाला एक्सप्लेन करो आप देखकर. मैम इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2F1 है. नहीं, बियॉन्ड बोलते हैं पीछे की तरफ. यहाँ बोलेंगे बिटवीन F1 एंड O. अच्छा इनके बीच में रखा हुआ है. अच्छा वो अच्छा मैं सोच रहा था वो जो बी पे लगी हुई है वो है ऑब्जेक्ट. वो ए बी वाला तो दिखाई नहीं, इतना छोटा सा है. हाँ छोटा सा है. अच्छा अच्छा वो मैं, है. हाँ बेटा ये जो डॉटेड लाइन होती है ना, ये इमेज की है. और डॉटेड लाइन मींस यहाँ लाइन एक्चुअली मीट नहीं करनी है. इट विल अपियर दैट दे आर मीटिंग हियर. अच्छा ये मेरे को समझ नहीं आया. अभी आया. हाँ ऑब्जेक्ट ये है उधर है. बिटवीन F1 एंड O. बिटवीन F1 एंड O. फिर क्या हुआ? ये रे कैसे चली गई शान? जो मैं हाईलाइट करते रहती हूँ वो पोर्शन एक्सप्लेन करो. ये रे चली गई ये रे पैरेलल टू द वो principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस. The ray which is parallel to the principal axis after conversion, where it will go? Towards the focus. focus. Ishan, are you getting? यस मैम. And another ray. Ishan, ये वाला रे किधर की तरफ से जा रहा है? ये वाला मैम ओ से जा रहा है. Optical ऑप्टिकल से. हाँ, तो विदाउट कोई डेविएशन नहीं होगा. डेविएशन नहीं होगा. अब ये अगर हम नोटिस करें, इधर इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है. इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब इधर की तरफ ये नहीं मिलेंगी, ये फैल जाएंगी. तो इनको पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पीछे की तरफ जाकर मिलती हुई अपियर होंगी. मिलेंगी नहीं एक्चुअली, वी आर शोइंग बाय डॉटेड लाइन. क्योंकि देखो डायग्राम तो इतना है हमारा, आगे की तरफ नहीं मिल रही है, पीछे की तरफ. इट विल अपियर दैट दे आर मीटिंग हेयर एंड द इमेज विल बी अगर इमेज एक्चुअली नहीं बन रही है, it is appearing that it is formed, then it is known as Virtual. virtual. And virtual image is always Erect. erect. These are the points of image formation by convex lens. अब आप मुझे ये बताओ, in homework can you prepare these diagrams? Will you prepare with me here? वरना मैं ही करा दूंगी ड्यूरिंग द क्लास. वो तो मैंने जो ऊपर दिया है वो तो आपको लिख लेना है, ये तो कर लेना है. और इमेज फॉर्मेशन कैन यू डू इन योर होमवर्क? मैम ट्राई करेंगे. हाँ हुआ ट्राई तो. करो, ट्राई करो. दैट्स गुड थिंग. नहीं हुआ तो मैं बताऊं? मैम मुझे लास्ट डायग्राम में एक डाउट है. हाँ बोलो.
मैम वो लास्ट डायग्राम में अगर हमें दिखा कि वो फैल रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसी साइड मतलब दूसरे साइड दोनों को लेके जाना है कि वो उधर ही बनेगा? हाँ, ये तो बेटा प्रैक्टिस से आता है कि ये इस तरह से बनता है, इधर की तरफ दे आर नॉट मीटिंग, तो पीछे की तरफ मिलाने पर वो मीट कर रहे हैं। तो बियॉन्ड 2f1 वी विल गेट द इमेज विच इज एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके। ईशान, आप भी आज रे डायग्राम्स ट्राई करना, होमवर्क नोट डाउन करो ईशान। एंड दीज आर फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मैं कल को बता दूंगी। अब बस फिर साइन कन्वेंशन हो गया चैप्टर पूरा। पावर ऑफ लेंस ज्यादा नहीं बचता, बहुत ही कम बचता है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस का भी थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है देखो, ईशान आर यू देयर? Yes, ma'am. बिल्कुल डायग्राम्स जब बनाएंगे बिल्कुल बुक जैसे बनाने हैं, मतलब ऐसा समझो जितना ये पोर्शन है बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में दिखना चाहिए। लेंस mn, rays are parallel, this is diverging lens, so rays will become rays diverge and it appeared that it is joining at f1 when object is at infinity. Okay, when object, Ishan, can you tell me, object is at infinity, then image is formed on Yes, principal ma'am. focus. When object is at infinity, image is formed on principal focus. Yes, ma'am. And what about the size? It is Uh, Erect. इरेक्ट। हाँ, इरेक्ट है तो कैसा होगा, रियल एंड वर्चुअल? Yes, ma'am. वर्चुअल। एंड पॉइंट साइज बिल्कुल बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड। Yes, नेक्स्ट वन बी। प्रिशा, एक्सप्लेन दिस डायग्राम बी। हाँ ठीक है मैम, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट बी पे रखा, बी उसके नहीं, बाद बी पॉइंट नहीं है, ए बी इज द बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एंड F1। हाँ, बिटवीन टू f1 एंड f1। एक्चुअली यहाँ पर्पस क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यही डायग्राम है। मतलब अगर एक बार हमने इंफिनिटी पर रखा तो मुझे फोकस पर मिल गया हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और एक बार मैं 2f1 मतलब इंफिनिटी और o के बीच में कहीं भी रखूं, हाँ देन व्हाट विल हैपन, वन रे विल म- गो अ, उधर से थ्रू द पैरेलल, फोकस। नहीं पहली जाएगी पैरेलल टू द, पहले पैरेलल जाएगी, फिर डाइवर्ज होगी, जाके अब फिर फिर यहाँ वो अपीयर होगी पास करने से, की f1 पर मिल रही F1 से पास कर रही है, और फिर वो दूसरी O से पास करेगी है तो विदाउट विदाउट डेविएशन। डेविएशन पास तो ये करेगी। जो कट हो रही है यहाँ पर बनकर आ गया इमेज। हम्म दिस इमेज इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड ये है कि बिल्कुल पॉइंट साइज ही बन गया। हम्म दिस इज डिमिनिश्ड, और सीधा है तो मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। वर्चुअल है। ओके, हम्म